are going to study two of the chapters of GK that are included in your pen paper test. And the first chapter which we will study is Union Territories of India, that is on page number 28. And the second chapter is Cities with Glorious Past, that is on page number 58. So now let's get started. So the first chapter which we will study is Union Territories of India. So here it's a quiz to brush up your knowledge of the Union Territories of India. इंडिया के कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पे हमें बताना है, उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं and we have to tell the answer. The first one is how many union territories are there in India? इंडिया में टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? So the answer is 7. Now the next one is what is the capital of Dadra and Nagar Haveli? दादरा नागर हवेली का कैपिटल क्या है? So the capital of दादरा नागर हवेली is Silvassa. The third one is which two states surround the union territory of दादरा and नागर हवेली? कौन से दो स्टेट्स हैं जो यूनियन टेरिटरीज मीन्स दादरा नागर हवेली को सराउंड करते मीन्स उनके अगल बगल हैं? So the two states are Gujarat and Maharashtra. The fourth one is which country ruled Dadra and Nagar Haveli before its liberation in 1954? So it's asking कि दादरा एंड नागर हवेली पर किस कंट्री ने रूल किया था बिफोर इट्स लिबरेशन? लिबरेशन मीन्स मुक्ति से पहले इन 1954. सो द कंट्री वॉज पोर्टुगल, जिसे हम हिंदी में पुर्तगाल भी कहते हैं. नाउ द फिफ्थ वन इज विच यूनियन टेरिटरी इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलॉन्ग द अरेबियन सी? सो इट्स आस्किंग कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो वेस्टर्न कोस्ट, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है, वहाँ पर है अलॉन्ग द अरेबियन सी और अरेबियन सी के पास. सो द कंट्री इज दमन एंड दीव एंड द पुडुचेरी. Sixth one is which is the capital of Lakshadweep? What is the capital of Lakshadweep? So Lakshadweep का capital है कावरत्ती. Seventh one is which is the principal spoken language of Lakshadweep? So Lakshadweep की main principal language है मलयालम. Eighth one is which two union territories have legislative assemblies? So कौन सी दो union territories हैं जहाँ पर legislative assemblies हैं? So the answer is government of NCT of Delhi and Puducherry. Ninth one is who ruled Puducherry for 138 years before it was handed over to the Indian Union? So पुडुचेरी पर 138 मीन्स 138 साल तक किसने रूल किया? उस कब तक? जब तक इंडियन यूनियन को सौंपा नहीं गया उस जगह को, पुडुचेरी को, तो तब तक फ्रेंच ने वहाँ पर रूल किया था. 10th one is name the only union territory that is also the capital of two states. So पूछ रहा है यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए जिसके दो स्टेट्स हैं, मीन्स इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ टू स्टेट्स, मतलब दो स्टेट्स का वो कैपिटल है. सो द प्लेस इज चंडीगढ़. Now the 11th one is when was Chandigarh along with some areas surrounding it constituted as a union territory? So चंडीगढ़ मीन्स चंडीगढ़ जो है कुछ और एरियाज़ के साथ, कुछ और प्लेसेस के साथ along with some areas surrounding it मीन्स जो उसके अगल बगल एरियाज़ हैं उनके साथ वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ एज अ यूनियन टेरिटरी. सो इन 1968 इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ यूनियन टेरिटरी. Now the 12th one is when did Delhi became a union territory? So Delhi union territory कब बना? In 1956. 13th one is when was Delhi designated the national capital territory? और दिल्ली को designation कब मिला as the national capital territory का? So in 1991. 14th one is which two states adjoined Delhi? कौन से दो states हैं जिन्होंने दिल्ली को adjoin किया? So the two states are हरियाणा and उत्तर प्रदेश. 15th one is what is the capital of Andaman and Nicobar Island? Andaman and Nicobar Island का capital क्या है? So the capital of Andaman and Nicobar Island is Port Blair. Now we will come to the next chapter, that is cities with a glorious past. So many Indian cities have a long history. बहुत से इंडिया की ऐसी cities हैं जिनकी history, जिनका इतिहास बहुत लंबा रहा है. Now here we have to identify the ancient Indian cities. Ancient पुरातात्विक ancient cities के नाम बताने हैं from the detail given below. इन details को पढ़ना है and we have to name the places. The first one is it is the city where Tansen the great musician was born. ये एक ऐसी city है जहाँ पर तानसेन जो बहुत बड़े musician थे उनका जन्म हुआ था. This city was once the capital of
सिंधिया रूलर्स who belong to the मराठा डायनेस्टी। सो ये सिटी जो है एक समय में कैपिटल हुआ करता था सिंधिया रूलर्स का, जो कि मराठा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ गोपा पर्वत। इसे हम गोपा पर्वत के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है काउ हर्ट्स हिल, मतलब जहाँ पे गाय चराई जाती है। सो द प्लेस इज ग्वालियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज नोन इन ब्रिटिश टाइम एज औध। सो ब्रिटिश टाइम में इस जगह को औध के नाम से जाना जाता था। इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड फॉर बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ द हिंदू डाइटी लॉर्ड रामा। सो इस प्लेस को सबसे ज़्यादा हम लोग सेक्रेड प्लेस मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू के जो लॉर्ड हैं राम, उनका जन्म हुआ था अकॉर्डिंग टू एपिक रामायण के हिसाब से। बिसाइड हिंदुज़म इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ की बुद्धिस्ट सेंटर। इसके अलावा, हिंदुज़म के अलावा, इसे बुद्धिस्ट का सेंटर भी माना जाता है, बुद्धिज़्म का सेंटर भी माना जाता है। चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क जो है फैक्सियन इन द 5th सेंचुरी mentioned that there were 100 monasteries there। उसमें यह मेंशन किया गया था कि वहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा या 100 मोनास्ट्रीज रहा करती थी उस समय। सो द प्लेस इज अयोध्या। नाउ द थर्ड वन इज इट वाज द कैपिटल ऑफ चोला रूलर फ्रॉम द 9th to the 11th सेंचुरी। सो ये प्लेस जो है चोला रूलर्स का कैपिटल रहा है 9th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक। द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ द सिटी इज़ द बृहदीश्वरा चोला टेम्पल। सो इसका बिगेस्ट अट्रैक्शन इस प्लेस का, इस सिटी का रहा है यहाँ का मंदिर, जो कि चोलास टेम्पल था, बृहदेश्वरा चोला टेम्पल। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर द ट्रेडिशनल हैंडलूम वीविंग। इसे बहुत ज़्यादा इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी हैंडलूम वीविंग्स होती हैं, हाथ के द्वारा सिलाई बुनाई होती है, यूनिक पेंटिंग स्टाइल्स, और इनकी यूनिक, बहुत ही अलग तरीके की यूनिक पेंटिंग स्टाइल्स हैं। ब्रास प्लेट्स एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ वीणा अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। सो इन सब चीज़ों के लिए इसे बहुत ज़्यादा जाना जाता है। सो द प्लेस इज थंजावुर। नाउ द नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकली नोन एज कन्याकुब्ज। This town of central Uttar Pradesh was the capital of Harshvardhana's empire in the early 7th century. Though earlier known for its great splendor, the city was plundered twice, once by Mahmud of Ghazni and then by Muhammad Ghori. The town is renowned for perfumes and tobacco. So historically known as कन्याकुब्ज, पहले इसे कन्याकुब्ज के नाम से भी जाना जाता था। ये दिस टाउन ऑफ सेंट्रल उत्तर प्रदेश मीन्स ये सेंट्रल उत्तर प्रदेश में बसा हुआ है, वॉज द कैपिटल ऑफ, और ये हर्षवर्धन एम्पायर के समय में ये उनका कैपिटल रहा करता था in early 7th century. Though earlier known for its great splendors, और इस सिटी को 2 बार प्लंडर कर दिया गया था। पहली बार जो किया उन्होंने महमूद गजनी ने किया और दूसरी बार मोहम्मद गौरी ने किया। एंड दिस प्लेस, ये जो टाउन था, ये प्लेस था, इसे इसके परफ्यूम और टोबैको के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। सो द प्लेस इज़ कन्नौज। नेक्स्ट इज दिस सिटी ऑफ तमिलनाडु वॉज वंस द कैपिटल ऑफ पांड्या किंगडम। ये तमिलनाडु का प्लेस है, सिटी है, वंस द कैपिटल, पांड्या किंगडम का कैपिटल रहा था वो। इन द 1940s इट बिकेम नोन एज द सेंटर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और इस प्लेस पर एक बार 1940s में इस प्लेस पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चला था, ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। दिस सिटी इज़ फेमस फॉर द मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। ये प्लेस जो है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के नाम से भी बहुत ज़्यादा, मीनाक्षी टेम्पल के नाम के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तिरुमाला नायक पैलेस और तिरुमाला नायक पैलेस के लिए और तिप्पाकुलम टैंक के लिए बहुत ज़्यादा ये प्लेस फेमस है। सो द प्लेस इज़ मदुरई। Next is this city of Madhya Pradesh derives its name from the Sanskrit word Jai meaning victory. So ये प्लेस जो है मध्य प्रदेश में है, इसका मतलब है, इस प्लेस का मतलब होता है, संस्कृत वर्ड है जय, दैट मीन्स विक्ट्री, मीन्स जीत किसी चीज़ की। इट वॉज वन ऑफ द 4 प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ मॉडर्न रूलर अशोका। और ये प्लेस जो है 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स में से एक है जो कि मॉडर्न रूलर अशोका के समय में हुआ करते थे। द सिटी इज़ फेमस फॉर दी महाकाला टेम्पल। ये सिटी जो है महाकाल टेम्पल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। डेडिकेटेड टू द हिंदू डाइटी लॉर्ड शिवा, जो कि मंदिर ये जो है, जो हिंदू के देवता हैं
शिव भगवान उनके लिए बनी है ये मंदिर, महाकाल मंदिर। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइट्स ऑफ द कुंभ मेला, यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है। अ हिंदू फेस्टिवल, जो कि हिंदू फेस्टिवल है, जो कि हर साल 12 साल पे होता है। सो द प्लेस इज उज्जैन। ओके, now these two chapters are over. We will study the other chapters in the next session. Till that, thank you.